شہربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: وادی اور جموں ڈویژن میں کمر توڑ مہنگائی، صارفین پریشان۔ ماہ رمضان کے دوران بجلی سپلائی کی صورتحال ابتر، صارفین نالاں۔ آج رات سے ایک ہفتے کے لیے وادی میں موسم بدل رہا ہے، بارشوں اور برف کی پیشن گوئی۔ اور گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر سپورٹس کا آغاز۔ موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد۔ سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ سمن بابرکت مہینے رمضان کے دوران لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پابندی سے روزے رکھتے ہیں، نمازیں اور نوافل ادا کرتے ہیں اور صدقات و زکوٰۃ دے کر ناداروں کی اعانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کے روزے اللہ کے دربار میں قبولیت کے شرف سے سرفراز ہوں۔ ایسے ماحول میں یوں تو یہ تصور کرنا بھی عجیب لگتا ہے کہ کوئی دکاندار، کوئی تاجر اپنا سودا سلف اضافی قیمتوں پر بیچے یا غیر معیاری سودا سلف بیچے، پر ہمارے یہاں اس سب سے سابقہ پڑھنے کے لیے تصور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ ہمارے یہاں یہ سب ایک جیتی جاگتی البتہ پریشان کن حقیقت ہے۔ وادی کے کسی بھی بازار میں جائیے، خواہ سبزی خریدنے یا میوہ جات یا پھر گوشت اور مرغ خریدنے، آپ کو مختلف دکانداروں کے پاس مختلف قیمتوں پر چیزیں دستیاب ملیں گی۔ آپ اعتراض کریں گے، آواز بلند کریں گے تو دکاندار آپ کو سامان بیچنے سے ہی انکار کرے گا۔ یہ سچ ہے کہ جموں کشمیر میں لگ بھگ 3 سال سے قیمتیں ڈی کنٹرول ہو گئی ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دکاندار اور تاجر دھڑلے سے اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے اور صارفین کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا؟ قیمتیں ڈی کنٹرول ہونے کے بعد وہ افسران اور اہلکار بے شک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں جو کبھی بازاروں میں قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے کے لیے کارروائی کیا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صارفین کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ رمضان کے آتے ہی جموں کشمیر کے مختلف قصبہ جات اور سری نگر اور جموں کا شہر کے بازاروں میں قیمتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ صارفین دکانوں کا رخ کرنے میں بھی خوف محسوس کرتے ہیں۔ متعلقہ محکمے چیکنگ سکواڈز کے متحرک ہونے کی نسبت سے بے شک کاغذی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، لیکن حقیقی صورتحال کچھ اور ہے۔ محکمے خوراک اور میونسپل حکام کے سامنے یہ معاملہ رکھیے تو یہی سننے کو ملے گا کہ ان کے اختیار میں بہت کم ہے، لیکن صارفین کے معنی تو یہ سب بے بسی اس ملی بھگت پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے جو متعلقہ افسران اور تاجران کے درمیان موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ہوش ربا گراں بازاری کی نسبت سے 2 رپورٹیں نشر کریں گے۔ سب سے پہلے ضلع گاندربل سے رحیم رضوان کی یہ رپورٹ۔ سونمرگ میں فائر اینڈ ایمرجنسی سچویشن نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ شام پیش آئے آگ کی واردات نے اس قدر تباہی مچائی کہ اس مارکیٹ پر انحصار کرنے والے ہزاروں افراد کو کھلے آسمان کے تلے لا کر رکھ دیا اور سرما کی اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں روزی روٹی سے محروم کر دیا۔ واضح رہے اس سے قبل 2007، 2008 اور 2009 میں ایسے دل دہلانے والے بیشتر بازاروں میں گراں فروشی عروج پر ہے اور اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس سے عام صارفین کی قوت خریداری اور وہ ایک ہی بازار میں مختلف نرخ نامے دیکھ کر شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ ماہ رمضان کے متبرک ایام میں اپنے اہل خانہ کے لیے کیا خرید کر لائیں تاکہ وہ اختیار کر سکے۔ ضلع کے دودھرہامہ، کمریا چوک، بیہامہ اور ناگبل کے بازاروں میں قدم قدم پر ایک ہی چیز کے مختلف نرخ نامے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان بازاروں میں بکنے والے کھجور، فرینی بنانے کے لیے استعمال میں لانے والی چیزیں، بیکری، روٹی، سبزیاں اور پھل، خاص کر پپیتا، تربوزے، انگور، سیب، کیلے، سنگترے اور امرود کی قیمتوں میں ریڈی والے میوہ فروشوں اور سبزی فروشوں نے آج خود بے حد اضافہ کر دیا ہے۔ اسی طرح قصابوں نے بھی گوشت اور مرغ کی قیمتوں میں بے حد اضافہ کر دیا ہے اور وہ عام صارفین کو دو ہاتھوں سے لوٹنے میں سرگرم ہیں۔
इसी तरह सब डिवीजन कंगन बाजार में भी जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों ने अशाए खुर्दनोश की कीमतों में काफी इजाफा किया है, जिससे गरीब और पसमानदा लोगों की कुव्वत खरीद न रही और वो अहलो अयाल के लिए खाने पीने की चीजें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। जबकि गूंद, कुलन, हारी, गैनवन, वांगत, छतरगुल, वुसन, दुरसमा और मनगाम के बाजारों में दुकानदार और रेडी वाले लोगों से मुंह मांगी रुकूमत वसूल कर रहे हैं। इधर लार, बारसू, सरापोरा, भटविना, वाकोरा और डब नारायण बाग से बार बार शिकायत मौसूल हो रहे हैं कि इन बाजारों में भी सरकारी नरकनामा भलाई ताक रखकर मकामी दुकानदारों ने बेबस आवाम को लूटना शुरू किया है। हद तो यह है कि किसी भी बाजार में दुकानदारों ने दुकानों के सामने सरकारी नरकनामा अवेजा नहीं रखा है और वो मनमानी करके खाने पीने की चीजों में बेहद इजाफा कर रहे हैं। अगरचे म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल और जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता दिनों के दौरान 2 दफा मार्केट चेकिंग की थी, ताहम मकामी लोगों ने इस हवाले से शहरबीन को बताया कि ये चेकिंग सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए की गई, जबकि जमीनी सतह पर गिरा फरोशी पर कदगन लगाने के लिए कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जिस पर अवामी हलकों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। जिला गांधरबल में गिरा बाजारी उरूज पर रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। और अब रुख करते हैं जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़ जिले का। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव का कहना है कि जिले के मुख्तलिफ बाजारों में ताजिरों और दुकानदारों ने माह रमज़ान के दौरान इस साल गिरा फरोशी के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यही नहीं, किश्तवाड़ के कई बाजारों में गैर मेयारी सब्जियां, मेवाजात बशमूल खजूर बेचे जाने का सिलसिला खुलेआम जारी है। तफसीलात के साथ खुद मुश्ताक देव। बफजल खुदाई ताला माह रमजान मुबारक के पुरअज़मत व पुरखैर अयाम चल रहे हैं। इन मुतबरक अयाम में किश्तवाड़ में लोग आम तौर पर खुर्दो नोश में कुछ इजाफा भी करते हैं, जिनमें मुस्तामिल चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। अशियाई खुर्दो नोश के मयार और उनके निरखों पर मुकामी इंतजामिया की नजर होनी लाजमी होती है। आम तौर पर जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ईदेन व आरास के मौका पर अफसरान की एक मीटिंग मुनक़्क़िद किया करती है। कुछ हिदायत जारी हुआ करती है। इन हिदायत में खुसूसन बिला खलल बरकी रव की फराहमी, पीने के पानी की दस्तयाबी शामिल होती है। लेकिन किश्तवाड़ के देहात ही नहीं बल्कि कस्बा से भी शहरबीन को शिकायत मिल रही है कि उन्हें बवक्त जरूरत बिजली नहीं मिल रही है। उन्हें शहरी खुसूसन इफ्तार के वक्त रोशनी का कोई और मुतबादिल इंतजाम करना पड़ता है। पीने के पानी की किल्लत तो अक्सर आबादियों में रहती ही है। किश्तवाड़ कस्बा के बेशतर हिस्सा में मुसलसल कुछ दिनों के बाद सार्फिन को पानी मुहैया किया गया। इन दोनों महकमों के जिम्मेदारान ने माह मुबारक की आमद से कबल ही बिजली व पानी की माकूल फराहमी के लिए इंतजाम क्यों कर नहीं कर रखे थे। अवाम इस्तिफसार करने पर हक बजानिब है। महकमों के सरबराहों पर लाजिम है कि वो बहाना साजी न करे बल्कि जमीनी सतहों पर मुतहरिक होकर सार्फिन को बिजली व पीने के पानी मुहैया रखने को यकीनी बनाए। बसूरत दीगर पेशगी मीटिंगों के इनेकाद को निशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन जैसे मकौला सही ताबीर किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि किश्तवाड़ इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक कुछ आफिसरान और कुछ मुलाजमीन ने किश्तवाड़ की मार्केट के एक छोटे से हिस्से में पहुँच कर कुछ सब्जी व मेवा फरोशों की दुकानों व रेहड़ियों की जाँच की, कुछ चीजों को जाया किया और कुछ कलील सी रकम भी जुर्माने के तौर पर वसूल की। पूछा जा सकता है कि क्या बस इतना सा ही काम किया जाना चाहिए था? क्या सिर्फ बस स्टैंड और उसके नजदीकी दुकानदारों की ही सिर्फ चेकिंग की जानी चाहिए थी या दीगर बाजारों की भी चेकिंग होनी चाहिए थी जहां से लोग सौदा सलब खरीदा करते हैं? इस माह मुकद्दस में ज्यादातर गोश्त, सब्जियों, मेवों, मशरूबात और दूध से बनी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगरचे किश्तवाड़ में गुज़श्ता साल से अभी तक भेड़ बकरे का गोश्त 500 रुपयों में फी किलो दस्तयाब हो रहा है, ताहम अवजान और मयारी गोश्त पर नजर रखने की सख्त जरूरत है। किश्तवाड़ में फराश बीन 70 से 80 रुपए फी किलो, टमाटर 25 से 33 रुपए, शिमला मिर्च 70 रुपए, गाजर 35 रुपए, मटर 70 रुपए, भिंडी 100 रुपया, लहसुन 200 रुपए, बैंगन 50 रुपए, कड़म 40 रुपए, फूल गोभी 35 रुपए, टिंडे 50 रुपए, लीमू 200 रुपए और खीरे 60 रुपए फी किलो के हिसाब से खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं। एशियाई खुर्दनी की कामयाबी की शिकायतें मलवा से भी मिल रही हैं, क्योंकि वहां जाने वाले दोनों अतराफ यानी मरगन टाप वाला और दक्षिण वाला रास्ता बंद पड़ा हुआ है। अवाम का मुतालबा है कि अहम नौयत की अशिया को जहाज के जरिए मड़वा पहुंचाया जाए ताकि वो लोग उन्हें खरीद कर सके। इधर बोंजवा में अवाम जबरदस्त नाला है कि उन्हें किसी भी मौसम में जरूरत के मुताबिक बिजली मुहैया नहीं की जाती है। माह रमजान में भी उनके साथ वैसा ही सलूक किया जा रहा है।
جس کے خلاف کل وہاں لوگوں نے محکمہ بجلی، ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے حکام کے خلاف بھی خوب نعرہ بازی کی اور چاہا کہ انہیں درپیش جملہ شکایت کا فوراً ازالہ کیا جائے۔ کشتواڑ سے مشتاق دیو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ہم نے وادی کشمیر میں سبزیوں کی حد درجہ بڑھی ہوئی قیمتوں کی نسبت سے اقبال سبزی منڈی باٹمالو کے جنرل سیکرٹری معراج الدین نعت سے پوچھا کہ آپ صارفین کے صبر اور قوت خرید کا امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ پہلے آپ کی بات درست ہے کہ بہت جگہوں پر بہت سے رہتے ہیں، اس کی وجہ گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ کیوں ہے؟ پہلے جب آج سے 5-6 سال پہلے ریٹ لسٹ نکلتی تھی دکانداروں پرچوں فروش یا ہول سیل کے بارے میں ایک میٹنگ ہوتی تھی اور وہاں ریٹ مقرر ہوتا تھا، پھر وہی ڈسٹریبیوٹ دکانداروں میں کرتے تھے اور ایک ہی ریٹ رہتی تھی، کیونکہ اب ریٹ نہیں نکلتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اسی وجہ سے آدھے لوگ جو دکاندار ہے یا مطلب سبزی فروشان ہے یا فروٹ فروشان ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ریٹ بیچتے ہیں۔ پچھلے 5-6 سال کے دوران ایسا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ڈی کنٹرول ہوا ہے پرائس سسٹم، یہ سچی بات ہے، لیکن جو ایسوسیشنز ہیں چاہے وہ فروٹ گروورز کی ہیں، ویجیٹیبل گروورز کی ہیں، اور جو آپ منڈی میں کنٹرول کرتے ہیں ان کو، وہ آپ کی طرف سے بھی ایک ریٹ لسٹ جاتی ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے ہول سیلر سے یا ریٹیلر سے کہ آپ اس پہ عمل کریں، تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جناب ہماری ریٹ جو ہم گورنمنٹ کو ہر روز بھیجتے ہیں کہ آج منڈی میں اس طرح ریٹ سبزی کا یا پھل کا ہوا ہے، ہر روز ہم گورنمنٹ تک پہنچاتے محکمہ امور صارفین کے پاس، کیونکہ یہ بدقسمتی ہے کہ جو پہلے ریٹ نکلتی تھی تمام صارفین کو پتہ چلتا تھا کہ کس طرح ہمیں خرید فروخت کرنا ہے، کیونکہ جو اب ہمارے منڈی میں سبزیاں، اقبال سبزی منڈی باغی نرسنگ میں سبزیاں نہایت ہی کم داموں میں فروخت ہو رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ کو بھی ہر روز ریٹ بیچتے ہیں کیا آج مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے۔ پچھلی دفعہ راستے کی وجہ سے 2-4 روز سبزی تھوڑی یا فروٹ مہنگا ہوا تھا، پھر دوسری روز تمام ریٹ گر گئی واپس، لگ بھگ 20 روپیہ 25 روپیہ گر گیا ایک کلو میں۔ اس وقت ہمارے منڈی میں پھول گوبھی 20 روپیہ کلو ہے، آلو 8-9 روپیہ سفید ہے، گرا 12 روپیہ لال آلو ہے، پیاز 35 سے لے کر 38 روپیہ 40 روپیہ بک رہا ہے، یا ٹماٹر اس وقت نہایت ہی کم داموں پہ، پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ٹماٹر کے ریٹ اتنے کم داموں پہ فروخت ہو رہے ہیں، لگ بھگ 25-20 روپیہ کلو ٹماٹر اس وقت فروخت ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جو بھی باقی سبزیاں ہیں مثلاً کے طور پر مولی ہماری منڈی میں آج 15 روپیہ بکی ہے، 10 سے 15 روپیہ تک، کاڑم 10-12 روپیہ، اسی طرح پالک 20-15 بکی ہے، ساگ جو چیمداری وہ 15 روپیہ کلو فروخت ہوا۔ اب چونکہ یہی وجہ ہے کہ ہم روز ریٹ دیتے تھے، پہلے نکلتا تھا ہفتے کے لیے ریٹ مقرر ہوتا تھا مارکیٹ کی، 1 روپیہ یا 2 روپیہ اوپر نیچے ہو جاتا تھا۔ ہوتا کیا ہے، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص بازار جاتا ہے دکاندار کے پاس سبزی خریدنے کے لیے، فروٹ خریدنے کے لیے، اور وہاں پر اسے لگتا ہے کہ ریٹ زیادہ ہے اور وہ اس بات کا ذکر دکاندار سے کرتا ہے، دکاندار اسے یہ کہتا ہے کہ بھائی منڈی سے ہی ہمیں مہنگی ملتی ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں، وہ منڈی سے جو 20% اگر مثلا کے طور پر ان کو 10 روپے میں کلو ملے گا کچھ ریٹ میں، ان کو 20% چڑھانا ہے ایز پر گورنمنٹ، ان کا مارجن ہے پروفٹ مارجن، اس میں چھت بھی ہے اور نفع بھی ہے، 20% ان کو چڑھانی ہے، مثلا اس کو 12-13 روپے میں فروخت کرنا ہے، نہ کہ 20-25 روپے میں۔ جناب یہ روز ان کا کام یہ کہ منڈی میں مہنگا ہے، منڈی میں آپ آؤ چیک کرو منڈی میں کیا ریٹ ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو سبزی فروش ہیں، میوہ فروش ہیں، وہ منڈی کو بیکار میں بدنام کر رہے ہیں؟ اور کیا جناب، آپ آئیے، ہم روز محکمہ صارفین کو واٹس ایپ کے ذریعے ریٹ بھیجتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا انٹرونشن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ بھی ابھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، گورنمنٹ کا اس میں ابھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، چونکہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کل جناب فیس بک پہ اپنا منڈی کا ریٹ لگائیں گے اور عام صارفین تک پہنچائیں گے، اور ان کو 20% اس سے ایکسٹرا پرچوں فروشوں کو دینا ہے۔ ہم ہر روز خاص کر آج ہمارا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے، لیکن منافع خوری کر رہے ہیں لوگ، بدنام کر رہے ہیں منڈیوں کو۔ انفورسمنٹ آفیسر ہے ان کے پاس، چیکنگ کرے، اگر کہیں مہنگا مل رہا ہے ان کو پکڑیے۔ دکاندار ہمیں بے وجہ بدنام کر رہے ہیں، سبزی منڈی میں قیمتیں بہت کم ہیں، البتہ دکاندار صارفین کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، حکام کو فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ بات کر رہے تھے اقبال سبزی منڈی باٹمالو کے جنرل سیکرٹری معراج الدین نعت۔ شہربین جاری ہے کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ کی طبیعت آج اچانک
नासाज हुई। बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स दिल्ली में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर मुसलसल नजर रखे हुए है। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर नायब सदर की सेहत के बारे में मालूमात दरियाफ्त की। सामनवादी में आज बाद दोपहर से ही मौसम ने अपना रंग बदला। आज सुबह से लगभग 1:30-2 बजे तक अगरचे धूप खिली थी, अलबत्ता उसके बाद अचानक मतला अबरालूद हुआ और हल्की हल्की ठंड का एहसास भी हुआ। याद रहे कि महकमे मौसमियात ने कल यानी 10 मार्च से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिशें होने की पेशनगोई की है। महकमे की तरफ से कल की गई पेशनगोई के मुताबिक वादी के साथ साथ जम्मू डिवीजन के कुछ इलाकों में 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। अलबत्ता महकमे की ताज़ा पेशनगोई है कि मौसम की यह खराबी 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक कायम रहेगी। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि आज रात को भी वादी के चंद इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि आने वाले चंद रोज के अंदर बारिश और बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी खासकर 9 को मौसम जो है थोड़ा सा करवट लिया है दोपहर के बाद, और आज भी रात के दौरान जो है कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी या कुछ बूंदाबांदी के चांसेस हैं 9 को भी। और कल जो है मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में खासकर मैदानी इलाकों में बारिशें अमूमन रहेंगी, कुछ एक जगहों पे लाइट, कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट। और इसी तरह पहाड़ी इलाकों में खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन सारे जगहों पे थोड़ा लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, लगभग 4-5 इंच से लेके 6-7 इंच 8 इंच तक के भी बर्फबारी। बाकी जम्मू के भी कुछ एक पहाड़ी इलाके रामबन में या डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और इसी तरह रियासी जगहों पे भी बारिशों के चांस हैं। बाकी जम्मू के भी पहाड़ी इलाके खासकर डोडा किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट रामबन के यहाँ पे भी थोड़ा लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी ये थोड़ा सा वेदर क्लाउडी रहने के चांसेस हैं 11th को, और 12th को भी डे टाइम में वेदर थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा। इवनिंग के टाइम में फिर से मौसम जो है क्लाउडी रहना शुरू होगा, और 13-14 को भी जो है पॉसिबिलिटी है हल्की बारिशें, हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर। और ये इंटरमिटेंट रेन, स्नो, थोड़ा थोड़ा और ओकेजनली क्लाउडी या बीच बीच में सनशाइन, ये लगभग 16 तारीख तक बरकरार रहेगा। फिर उसके बाद मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकता है लगभग 21 मार्च तक। तो 17 से लेकर 21 तक मौसम अमूमन ठीक रहने के चांस हैं। बाकी 16 तक फिलहाल मौसम मजमूई तौर पे अबर आलूद, बारिशें, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, खासकर 10 को 13-14 के दरमियान और 15-16 के दरमियान। जिस पैमाने की बर्फबारी की आप बात कर रहे हैं उससे गालिबन सड़क राबते मुतासिर होने का इम्कान नहीं है। मैदानी इलाके और बाकी इलाकों में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल एक्यूमुलेट हुआ है, खासकर जो पिछला स्पेल के कारण, तो उन जगहों पे एक बार फिर जो है मुतासर हो सकता है। लगभग 4-5 इंच से लेकर 7-8 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। तो पहाड़ी इलाकों के अंदर खासकर जो पुरानी जो बर्फबारी के कारण काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए तो इन जगहों पे एक बार फिर जो है मुतासर हो सकते हैं, खासकर जो शराहें हैं। क्या श्रीनगर शहर में भी बारिशों का इम्कान है? यहाँ पे भी बारिशें रहेंगी खासकर कल डे टाइम में, और फिर 11th को अमूमन ठीक रहने के चांस हैं, थोड़ा अबरालूद रहेगा। 12th को भी डे निकल जाएगा, लेकिन 12th रात 13 को और इसी तरह 13-14 के दरमियान भी जो है यहाँ पे हल्की बारिशें रह सकती है, खासकर श्रीनगर और राजौरी एरिया के अंदर भी। लद्दाख में मौसम किस तरह का रहने का इम्कान है? लद्दाख के अंदर भी खासकर द्रास, काकू और यहाँ जो पहाड़ी इलाके इन जगहों पे एक बार फिर बर्फबारी के चांसेस हैं। लगभग 3-4 इंच से लेके 5-6 इंच 7 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है, और सिग्निफिकेंट स्नो डेप्थ खासकर अगले 4-5 दिन तक मौसम जैसे खराब है तो एक सिग्निफिकेंट स्नो डेप्थ जो है एक्यूमुलेट हो सकता है अगले 4-5 दिनों के अंदर। तो खासकर मिनामर, द्रास, इसी तरह सांकू, खासकर इन सारे जगहों पे जो है बर्फबारी के चांस हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कारगिल में भी जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है अगले दिनों में, खासकर 10 को, और इसी तरह लेह के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है देखा जा सकता है। आज रात से 17 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर करामत कयूम की इत्तला है कि मशहूर सियाती मकाम गुलमर्ग में आज खेलो इंडिया सरमाई खेलों का 5वां एडिशन बाकायदा शुरू हुआ। वाज़ेह है कि ये सरमाई खेल मुकाबले 12 मार्च को इख्तिताम पजीर होंगे। आपको याद होगा कि खेलो इंडिया सरमाई खेल 22 से 25 फरवरी के बीच गुलमर्ग में मुनाकिद होने वाले थे, लेकिन बर्फ की कमी के बाइस खेलों का इनेकाद फरवरी में मुमकिन न हो पाया। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद खेलो इंडिया सरमाई खेलों का रमा साल का एडिशन नॉर्डिक स्कीइंग से शुरू हुआ। इस मौके पर खिलाड़ियों में खासा जोश खरोश पाया गया। बताया जाता है कि आज कोंगडूरी में स्की माउंटेनियरिंग, स्लोप बोर्डिंग और एल्पाइन स्कीइंग के इवेंट शेड्यूल्ड हैं।
खेलो इंडिया मुकाबलों में मुल्क के लगभग 350 खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज़ अगरचे हो चुका है, अलबत्ता इफ्तिताही रस्म आज शाम अंजाम दी जाएगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और खेलों के वजीर सतीश शर्मा मौजूद होंगे। गुलमर्ग में अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर सर्विस का भी आगाज़ हुआ है, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया था। हेलीकॉप्टर सर्विस के मुतारिफ होने से गुलमर्ग में हेली स्कीइंग के इम्कानात भी रोशन हुए हैं। समन कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ये शिकायत पै दर पे मौसूल हो रही हैं कि बिजली की फराहमी में यकलख्त खासी कमी आ चुकी है और ये कि सहरी और इफ्तारी के वक्त बिलखुसूस बिजली की फराहमी मुतासिर रहती है। बिजली सार्फिन का कहना है कि मौसम में मजमूई तौर पर बेहतरी आने के साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि बिजली की फराहमी में भी नुमाया फ़र्क आएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। याद रहे कि माह सियाम की आमद के साथ ही सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि सार्फिन को इजाफी बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन हकीकत में इसके बरक्स हुआ है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। रमजानुल मुबारक के दौरान बिजली की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती जा रही है और लोग इस हवाले से सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो हस्ब वादा मुतबरक अयाम के दौरान बला खलल बिजली सप्लाई रखी जाए। वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले में भी माह सियाम के मुतबरक महीने में भी आंख मचोली और गैर एलानिया कटौती से जहां आम सारिफिन वही तलबा को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बरकिर अदम दस्तियाबी से दुकानदारों और सनती इदारों को भी नुकसान से जूझना पड़ रहा है। जिला भर में बिजली सप्लाई में बार बार कटौती की वजह से पकरपुरा और तारी शरीफ से लेकर खान साहब और खाग तक सारिफीन महकमा से नाला है। हालांकि रमजानुल मुबारक शुरू होते ही सरकार ने लोगों को बेहतर बिजली फराहम करने की यकीन दहानी की, ताम इसके बरकस ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और आए रोज एहतिजाजी और धरनों के दौरान लोग अपने मुतालबात सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ताम इसके बावजूद भी महकमा लोगों को बेहतर बिजली सप्लाई फराहम नहीं कर पा रहा है। शहरबीन को मिली तफसलात के मुताबिक खान साहब रिसीविंग स्टेशन से वाबस्ता कई देहात जिनमें यारिखा, डब्बीपुरा, करालपत्री, हारवानी, शीनीपुरा, याकूबाबाद और रैयार व दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली से सारिफीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक महकमा ने अजीब गरीब कटौती शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू किया है और शाम के वक्त अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर बरखी मुनक़ता की जाती है। इधर रिसीविंग स्टेशन बीरवा के इसगंदरपुरा और नाजिन फीडर के कई गांवों में जिनमें लूलीपुरा, कनीगुंड, उत्तरपुरा, तारनगांव, माहछमा, औरवा, नगर, मीरीपुरा और नारवारा व दीगर देहात के मुताबिक बिजली की सूरत हाल जूं की तू है और उन्हें उम्मीद थी कि मुतबरक अयाम के दिनों में बिलखसूस शहरी और अख्तियारी के अवकात माकूल बिजली सप्लाई फराहम की जाएगी। ताहम मासिया में भी इन्हें बार बार कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग सख्त परेशानी हाल है। उधर रिसीविंग स्टेशन खाग से वाबस्ता पोशकर फीडर और सुगन फीडर के कई देहात जिनमें त्रापई, हमचीपुरा, ददोरा, शुपलिन, गोगलडारा, ड्रंग, दालवाश, नवगाम और नागबल व दीगर गांवों के लोगों ने महकमा पर इल्जाम लगाया कि शहरी व इख्तियारी के अवकात के दौरान गैर जरूरी बिजली कटौती अंजाम दी जाती है, जिसके बाइस लोगों को मुकद्दस अयाम के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही चाडोरा तहसील के कई देहात का कहना है कि नाकस तरसीली निजाम खस्ताहाली का शिकार हो चुका है और खंबे काफी बोसीदा हो चुके हैं जो किसी बड़े हादसे का मौजब बन सकते हैं। इसी दौरान जिला से दूर 42 किलोमीटर वाक़ा त्राईपुरा रिसीविंग स्टेशन इलाके कई देहात जिनमें शेरचक, काहीगाम, ढलवन, मोहनपुरा, कादीपुरा और पकरपुरा समेत दीगर देहात में कटौती जारी है और लोगों ने शहरबीन को बताया कि इन मुतबरक अयाम के दौरान भी बिजली की आंख मचोली रहती है, खासकर शहरी इफ्तारी के अवकात अगरचे बिजली फराहम नहीं की जाती है। हालांकि बिजली फीस की अदायगी में कोई लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। इधर सुनूरकलीपुरा और वार्डवन रिसीविंग स्टेशन से वाबस्ता बेशतर इलाकों में भी यही सूरत हाल है और बार बार कटौती से लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इस सिलसिले में जिला भर के लोगों ने महकमा पीडीडी के हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि शेड्यूल के मुताबिक इस मुतबरक अयाम में लोगों को बगैर किसी खलल बिजली फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी और इफ्तियारी के वक्त इन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बड़गाम से यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान छानपुरा, श्रीनगर और मुलिका इलाका जात की आबादी का कहना है कि आज शहरी के वक्त से लेकर सुबह 11 बजे तक उन्हें सिंगल फेज बिजली फराहम की गई, जिसके नतीजे में उनके मामूलाती ज़िंदगी खासी मुतासिर रहे। आबादी ने इस मामले में मुतालिका हुकाम की दिलचस्पी का मुतालबा किया है। इधर पीडीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी का कहना है कि हल्का इंतखाब खान साहब बिलखुसूस खाग तहसील में बिजली की सप्लाई पोजीशन नागुफ्तबह है। उनके बकौल ऐन सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिसके बायस लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंजूर अहमद वानी का मुतालबा है कि इस मामले में मुतालिका हुकाम फिलफौर तवज्जो दें। आज बुलंद पाया वली हज़रत मखदूम हाजी अहमद कारी कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक
अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताना आलिया वाक़ पत्थर मस्जिद जाने कदल में नमाज ज़ोहर के बाद कुरान खानी, ख़तमात मौज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस मुनक़्क़िद हुई, जिसकी पेशवाई सैयद मंजूरुल हसन कुरैशी ने की। इधर मस्जिद बिलाल मिनी कॉलोनी शानपुरा में आज नमाज असर के बाद से नमाज मगरिब तक मौलाना रियाजुल हक नूराबादी ने वाज़ फरमाया। मौजू था मुनाफिकों की पहचान। पीडीपी के लीडर अल्ताफ़ मलिक ने हालिया पेश करता बजट के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बजट ने बेरोज़गार नौजवानों के साथ साथ डेली वेजरों, कैजुअल और नीड बेस्ड वर्करों और किसानों और फ्रूट ग्रोवर्स को मायूस कर दिया है। उनके बकौल लोग बिजली फीस में रियायत देने के इंतज़ार में थे, लेकिन ऐसा कोई ऐलान बजट में नहीं किया गया। और प्रोग्राम के आखिर में त्राल से शब्बीर भट्ट की इतला कि त्राल डाड़सरा सड़क पर चंद्रीगाम के नज़दीक अहमियत का हामिल एक पुल ढह जाने के करीब है, जिसकी वजह से इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर हादसे का एहतमाल है। इस मामले में R&B के हुकाम की तवज्जो तलब की जाती है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। याद है वो यकबस्ता सर्दियाँ, वो चिल्लई कला की सर्दी। हमारे यहाँ जैसे सब कुछ गहरी नींद में चला जाता था, जमीन जम जाती थी जैसे, घर बंद, काम का रुकना और सपने भी जैसे हाइबरनेशन में चले जाते थे। मगर